Hi, welcome. कैसे हैं अनिल जी? Good. Nice shirt. Thank you. भारती कैसी हो? मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं? थैंक्स मैम। लवली। और डेटा बेटा का बैकअप ले लिया है ना? मतलब आज तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? नहीं मैम, 50% हुआ है, 50% अभी है। लवली। और व्हाट अबाउट सिस्टर? सिस्टर ज्वाइन कर रही है आज? मैम मैंने उन्हें लिंक तो सेंड कर दिया, आप पता नहीं बात हुई यार। एक्चुअली उनका भी कल डेटा शायद थोड़ा दिक्कत कर रहा था। मैम उनके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू है। Right. Great. So we have couple of minutes left. Let other people also come. आज लास्ट डे है, पता ही नहीं चला। जी है। मुझको पता नहीं चला, आपको पता चला? खेल में नहीं फिर गुड़िया को कह रही थी कि मैंने कहा बेटा आज ना लास्ट क्लास है। कहते मम्मा क्यों आपकी क्लास होनी है? तो मैंने कहा पता नहीं, अभी मैम ने क्लास नहीं करवाई है। कहते नहीं आप लिया करो, आप ठीक रहते हो। अब बच्चे भी फीडबैक दे रहे हैं। आशिमा वेलकम। आशिमा वेलकम, कैसी हो? मैम 1 मिनट बस। Sure, please take your time. We still have couple of minutes. हाँ जी हो गया। Great. Good. Nice to see the bindi. Okay, we have another minute to go and then we'll begin. Let's see who else is joining. अमीशा कहाँ रह गई? Okay. सब लोगों ने अपना असाइनमेंट किया है कल का? All the homework done? Almost. वैसे क्या था असाइनमेंट? Please remind me. आपने कल कहा था कि हमें एनालाइज करना है if in our relationship in general are we a giver or a taker, and then we have to make two separate lists of Two separate columns of how we give to people and what all we take from people. Yes. Thanks for reminding. So Anil ji, do you have the agenda handy? Can you please open it? Yeah, today's one. Yeah, so we'll wait for another minute, then we'll go day wise, okay? We'll do a revision and then sharing. So I think it's 6 p.m. already. So we can begin. All right, so namaste and welcome to the final 8th day of our self-love program, basic program. कहने को ये बेसिक प्रोग्राम था, बट मुझको लगता है कि एडवांस लेवल का ही हमने इसमें कवर किया। जो नॉर्मली लोग एडवांस लेवल वर्कशॉप में करते हैं ना, वो हमने बेसिक लेवल पे आपको करवा दिया। हमको लगा आप रेडी हैं और हमारे पास नॉलेज विजडम है शेयर करने के लिए, तो एडवांस लेवल पे तो पता नहीं हम क्या क्या करने वाले हैं। एंड टुडे इज द फाइनल डे लाइक आई सेड, एंड we'll do a quick review day wise agenda, what all we did, and then we will discuss the assignment and also today's topic, and then we'll wrap up the workshop in a way that this smoothly and seamlessly leads to the advanced program. Okay, so I think somebody else will have to look at the agenda, or if it is right now us, I don't think so we need to revise it, but we'll just read the agenda and we'll do like one liner, one pointers. So Ashima, you want to do it? हाँ जी, I can. Okay, so please begin with day 1. So हमारा जो ये टॉपिक था, जो 8 days workshop था, that was flirting with self-love leading to a committed man-woman relationship. जिसमें day 1 was reality check, that is your baseline. What is the big deal about self-love? Yeah, so let's split it up and one liner what all we did. Okay, so day 1 first topic is what? Reality check your baseline. What did we do in this? You gave us an assignment of 8 questions where we had to answer them in yes or no, and we had to set our baseline about how far along we are in our self-love chronicle. Correct. So there was kind of a questionnaire wherein I asked you 8 questions,
because it's like, you know, when you have a weight loss program or anything, you do pre and post. So before we started getting into self-love ocean, so we wanted to do a assessment, not assignment, rather an assessment to see where we stand in terms of self-love. So I gave you 8 questions. Every question carried the same rating. And then you gave yourself, because you're the best judge of your life and about your condition. So you gave points and then you all arrived at the score. So each one of you had a score. Correct? So today we will do another assessment and we will see if your initial score was 3. What is your score today? Okay, Bharti, makes sense? Pre and post? Yes, ma'am. Great. Then what was the second topic? Ma'am, second day agenda was break the dam. No, we are still on day 1. What was the second topic? What is the big deal about self-love? Yeah, can you tell us the bullet points? What did we study in this? मैम मोस्टली आपने ये बताया था कि जितना ज्यादा सेल्फ लव होता है उतना ज्यादा ही इवेंचुअली हमें हमारे पार्टनर से भी लव मिलता है, बिकॉज द मोर वी लव आवरसेल्फ इज द काइंड ऑफ लव वी गेट फ्रॉम अदर्स. एंड आपने ये बताया था दैट वी टेल पीपल हाउ टू ट्रीट अस by the way we treat ourselves. मतलब आपने कुछ यूनिवर्सल लॉज के 1-2 पॉइंट्स लिखाए थे. Yes. And also that frequency that we vibrate at, basically जैसे हम हैं तो वैसी हम चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं. Lovely. I hope you're referring to your notes, because all these 8 days I saw you were meticulously, taking notes, right? Yeah. So yes, you're right. So we also spoke about universal laws, guys. Like we have law of gravity, whether you go to Australia or you go to Bermuda Triangle, everywhere your, law of gravity will work. No, Bermuda Triangle, it doesn't work. Or it's the strongest, probably. So the point is that the universal law, what is a universal law here? That your self-love is directly proportional to your partner's love. Okay? And yes, usi mein humne kara ki jis tarike se we only give message to people, we only teach or tell people how to treat us. Okay? Great. What else? Anything else? And also that what is inside gets replicated outside. Yeah. Yes. What is inside gets replicated outside. It's the same pattern that gets repeated. So if we make changes within, the same will be replicated outside. And this happened. Many day 1 samjhaya, or 4th and by the 5th day, participants were sharing that ma'am कमाल हो गया, हम अपने अंदर सेल्फ लव काम कर रहे हैं और हमारे फैमिली मेंबर्स ही बदल गए हैं. उन्होंने तो सेल्फ लव का कोर्स ही नहीं किया, ना हमने उनको कुछ समझाया, बट जस्ट बिकॉज जो आपने मेडिटेशंस हमको बताई यूट्यूब चैनल की, हमने वो मेडिटेशंस करी, असाइनमेंट्स करी, और हम देख रहे हैं हमारे परिवार के लोग ही बदल गए, है ना. सो एज इन विद इन, सो इज आउटसाइड. Okay, great. And then we also gave you a assignment of day 1 to do, which was, what was the assignment of day 1? आपने हमें कहा था कि हमें आपका गिल्ट का लिस्ट बनाना है, जिसमें we have to bifurcate into 2 parts, which is self guilt and the guilt that we get from other people. That is external. Absolutely, yeah, because हमारा day 2 का topic guilt से related था. तो day 1 में हमने आपको assignment दिया था कि make a list, exhaustive list of what all you feel guilty about. Okay, because we have to release that guilt. We have to feel free. बहुत बोझ है अपनी आत्मा पे guilt का, है ना, या एंजाइटी का या ओवरवेलमिंग फीलिंग का. और उसको आपको 2 पार्ट्स में लिस्ट हमने बनवाई. One part was the guilt that the society is giving you, your spouse, your girlfriend, your boyfriend, your children, your bosses, you are like that. They make you believe, whatever their perception is about you. That's not the reality. That's what they are experiencing probably. That might be a part of you, but not really you. Second part of the list was what you feed yourself continuously. मैं तो बहुत बुरी हूँ, मैं तो पागल हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, like that. Okay, so we did that. Moving on to day 2. Day 2, what we did? मैम हमारा एजेंडा था break the damn guilt. Break the damn guilt. Great. So once we identified, we did lot of introspection. जब assignment की सभी participants ने अपने घर में काफी
इंट्रोस्पेक्शन की और लिस्ट बनाया। फिर डे 2 में हमने आपको बताया कि उस गिल्ट को रिलीज करना और कैसे करना है। We looked at that right now, how are we handling that guilt? And we saw that almost it was an interactive session. All the participants shared कि जब मुझको गिल्ट होता है मैं खाना खाने लगती हूँ, जब मुझको गिल्ट होता है मैं ये करने लगता हूँ. You know, some people will smoke, some people will do impulsive shopping. So we realized that everybody has, you know, a unhealthy mechanism or unhealthy way of coping up with their guilt or anxiety, and it's a pattern which is becoming more and more stronger. And who is having the maximum loss in it, Bharti? सबसे ज्यादा कौन खो रहा है इस पूरे प्रोसेस में, भारती? मैम हम खुद ही खो रहे हैं. हम खुद ही खो रहे हैं. खुद ही ग्रेट. खो. और अगर इस गिल्ट के पैटर्न को ब्रेक करना है तो जान किसको लगानी पड़ेगी? सपोर्ट सिस्टम आपका कैसा भी है, सबसे ज्यादा जान आप ही को लगानी पड़ेगी. हमें को लगा. पाँव की पेड़ी है ना, जब तक हम जी, काम नहीं मैम. करेंगे तो नहीं होगा. ग्रेट. देन डे 2 का हमारा असाइनमेंट क्या था आशिमा? हमें एक लिस्ट बनाना था हाउ जो हमारा गिल्ट लिस्ट था उसका इस सेशन के बाद हमारा पर्सपेक्टिव चेंज कैसे हुआ उसके ऊपर कि Correct. पहले अगर हम किसी गिल्ट को बहुत नेगेटिवली सोच रहे थे तो उस सेशन के बाद क्या हमारी सोच में कोई बदलाव आया. Absolutely. Reprogramming, right? Or subconscious mind, and looking at the same thing with a different perspective. Like if we said that I felt manipulated, cheated, or exploited in a particular relationship because मैं उनको दे देकर खाली हो गई या खाली हो गया, then we looked at the other side of the coin, that that is how we gain a lot of experience and maturity and wisdom also in life. That now can be encashed. If you look at it, that's exactly what I'm doing. I'm so thankful to the people who cheated on me, who broke my heart, who made me cry, who treated me, or probably somebody who abused me. I'm so thankful because that's how today I'm able to conduct this workshop. That's how I can relate to things when you tell me that you are dealing with abusive partner, or you have a financial problem, or you have addiction or a compulsion to something. So that's how I can relate to things because I've walked that lane myself. It's not something that I've read in a textbook and then I have a degree and then I'm teaching. So it is all coming from self-experience and substance. And that is why each and every day I was discussing my own examples, not to share my pain that has been released, and that's how the growth has happened. If you don't release the pain, growth will not happen. The idea was so that you also get motivated to shed your inhibitions and open up. For example, some people were texting me that one session record hoga, YouTube mein jayega, conscious, you know, inhibition कि जान पहचान वाले लोग देखेंगे, जज करेंगे, बेइज्जती होगी, you know, but we have to understand this. जब तक ये inhibition रहेगा तब तक ग्रोथ नहीं होगी, फिर ये प्रोग्राम करने का कोई फायदा नहीं है, फिर ये सिर्फ टाइम पास है, एंटरटेनमेंट है. Then we can do something else at this time. There's no force. Okay. जब मुझको I mentioned this clearly that it took me 4 to 5 years for self-acceptance, that journey, that intense journey. And we also shared कि किस किस तरीके के गिल्ट है और उसमें सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिल्ट कौन सा है, हमने ये भी स्टडी किया. अनिल जी, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग गिल्ट जो पीछा ही नहीं छोड़ता हमारी जान का, कौन सा हमने आइडेंटिफाई किया था अनिल जी? खुद का ही है और फिर पेरेंट्स का है. ग्रेट ग्रेट. तो मैं मैं इसीलिए आपसे पूछ रही, लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, हमने ये आइडेंटिफाई किया सेकंड मोस्ट पेनफुल जो है वो है इमीडिएट फैमिली मेंबर्स और लव्ड वंस, जिसमें क्लोज फ्रेंड्स, लवर्स, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर आते हैं. ठीक है, ये सेकंड मोस्ट इंटेंस है कि सड़क पे चलता कोई कुछ बोलता है, वहां फीलिंग्स नहीं होती. ये लोग जब हमें कुछ बोलते तो हमें लगता है यार ये हमें समझ ही नहीं पाए, हम पूरी उम्र निकल गई, मेरा पति मेरे बारे में ऐसे सोचता है, यार मेरे माँ बाप ने मेरा साथ नहीं दिया, यू नो, लाइक दैट. सो इट्स वेरी हर्टफुल. लेकिन उससे भी बड़ा, सबसे ज्यादा जो हर्ट करता है और मुश्किल है जिस गिल्ट को हटाना सेल्फ एक्सेप्टेंस की जर्नी में, भारती, क्या है वो? मैम पार्टनर का गिल्ट नहीं, सेल्फ का गिल्ट. पार्टनर का तो सेकंड मोस्ट हो गया ना. देखो बार बार, दैट इज व्हाई वी आर रिवाइजिंग, ताकि क्योंकि इसके बाद एडवांस मॉड्यूल में जाना है और एडवांस मॉड्यूल के लिए आज के बाद ये नहीं होना चाहिए कि फिर 2-3 दिन हमें याद रहे और फिर हम भूल जाए. जैसे आपने शेयर किया, डॉटर ने तो लाइटर नोट में बोला, बट देखिए उसमें कितनी सीरियसनेस है. डॉटर ने बोला मम्मा आज लास्ट डे आपकी वर्कशॉप पर, नहीं आप ये करते रहा करो, आप ठीक रहते हो. यानी कि एक छोटा बच्चा, हाउ ओल्ड इज योर डॉटर? 8 years.
8 साल की बच्ची को भी आपका सिर्फ ये 1 घंटे की क्लास की है आपने, मैं 7 बजे की बजाय भी 6:50 6:55 पे कॉल रख देती थी हर रोज, है ना। तो आपकी 50 मिनट्स 55 मिनट्स की भी अगर 7 डेज की अभी तक क्लास हुई है, एक 8 साल की बच्ची ने भी आपके आउटर सरफेस में चेंज नोटिस कर लिया, तो एडल्ट्स कितना करेंगे, वो बोले या ना बोले। अगर आप बिजनेस में हैं, जॉब में जा रहे हैं, जस्ट इमेजिन द लेवल ऑफ ग्रोथ ईच वन ऑफ अस हैव हैड इन 7 days, राइट। सो सबसे बड़ा जो गिल्ट है, मेरी भी सेल्फ जर्नी, जो सेल्फ एक्सेप्टेंस था, वो खुद को था, जो हम खुद को जज करते हैं। मैं बहुत बुरी हूँ क्योंकि मेरा डिवोर्स हो गया, क्योंकि हमारे बचपन से कंडीशनिंग हुई है रिश्ता नहीं टूटना चाहिए, लड़कियों को ज्यादा होता है, तो हम खुद ही को करते हैं, आई एम नॉट गुड इनफ फॉर लव, आई एम नॉट वर्थी ऑफ लव, हमारा सेल्फ वर्थ नीचे चला जाता है, उससे हमारा कॉन्फिडेंस नीचे चला जाता है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट डे का क्या था आशिमा, और उस दिन क्या असाइनमेंट थी हमारी? मैम डे 3 था एक्सेप्ट योर बेबी का ये असाइनमेंट था जो हमने डिस्कस किया था। करेक्ट। तो एक्सेप्ट योर बेबी में हमने इन सब चीजों को एक एक करके, जैसे प्याज का छिलका एक एक करके निकलता है, अनियंस लेयर, वैसे ही हमने एक एक करके अपने गिल्स को देखा और उन चीजों को हटाया। और एक्सेप्ट योर बेबी, बेबी हमारा सोल था कि हम ही को उसको गले लगाना है। Before we have an expectation that our partner should come and love us, let's love ourselves first, okay, then have the expectation that somebody else will understand you. जब तक आप खुद को प्यार नहीं कर सकते, क्या हक है ये सोचने का कोई और आपको प्यार करे। सबसे बड़ी बात, जब तक आप खुद को ही नहीं समझ पा रहे हैं, तब तक आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि कोई आपको समझे। मैं यही कहती थी, कोई मुझे नहीं समझता, कोई मुझे नहीं समझता। You know, somebody quoted things like तुम्हारे अंदर समुद्र जैसी गहराई है, you know, but कोई समझ ही नहीं पा रहा है हमको। जैसे आशिमा तुमने बोला कि 8-9 साल की उम्र में भी तुम 40-40 साल के लोगों के साथ डिस्कशन करती थी, तो इंटेलेक्चुअली कितनी मैच्योर हो गई। करेक्ट, ग्रेट। सो नेक्स्ट डे पे आते हैं, नेक्स्ट डे का क्या एजेंडा था? मैम नेक्स्ट डे व्हिच वाज डे 4 वाज फ्री द बर्ड फ्रॉम द केज। और डे 3 में आपने हमें कहा था कि अगर हम बर्ड का जोड़ा या एक बर्ड भी अरेंज कर सकते हैं तो हम करें। एंड ऑल्सो वी हैड टू फाइंड ओल्ड फोटोग्राफ्स जो हम दिखा सकते हैं, हैप्पी मेमोरीज। एंड वी ऑल्सो हैड टू मेक अ लिस्ट जिसमें हमें ये लिखना था कि कौन सी चीजों को लेकर हम बाहर वाले लोगों से एक्सेप्टेंस ढूंढते हैं अपनी लाइफ में। करेक्ट करेक्ट। तो क्यों और किन किन चीजों को लेके हमने, ये हमारी असाइनमेंट का सबसे अहम हिस्सा था कि हम किन किन चीजों के लिए बाहर अप्रूवल ढूंढ रहे हैं, ताकि हम रूट कॉज, करेक्ट, मैं उसी पे आ रही हूँ, रूट कॉज एनालिसिस। जैसे हम 6 सिग्मा में या पीएमपी में पढ़ते हैं फिशबोन डायग्राम, if it rings the bell to you, so I always bring science and spirituality. So हम रूट कॉज पे जा रहे हैं कि हम किन किन चीजों के लिए बाहर से जो है एक अप्रूवल ढूंढ रहे हैं। तो क्यों ढूंढ रहे हैं, रीजन, क्वेश्चन मार्क। तो जैसे कुछ पार्टिसिपेंट्स ने शेयर किया कि आधी रात को भी पति जगा रहे कि उसके पराठे खिलाओ, तबीयत खराब है, दर्द हो रही है, फिर भी हम कर रहे हैं, और शायद पार्टनर को पता भी नहीं कि वी आर नॉट वेल, हमने शेयर भी नहीं किया, तो हम क्यों अप्रूवल चाह रहे हैं, क्यों हम सबको प्लीज करने में लगे हुए हैं आउट ऑफ द वे जाके, और खुद ही को टॉर्चर कर रहे हैं, सेल्फ टॉर्चर, है ना। हम सबसे बड़े खुद ही दुश्मन हो गए, हमें कोई और दुश्मन ही नहीं चाहिए। तो हाँ, हमने फोटोग्राफ्स भी शेयर करी, कोई अपना फोटोग्राफ लेके आया मैरिज का, कोई बच्चों का, कोई तो एकदम न्यू बॉर्न पैदा हुई फोटोग्राफ, तो बहुत अच्छा लगा। और सबने नई नई चीजें भी करी। आई थिंक एक असाइनमेंट का ये भी हिस्सा था कि कुछ नया, यस, हाँ, वो चेन से हम मूव कर रहे हैं, तो उस दिन 2-3 चीजें थी, तो फोटोग्राफ भी बहुत अच्छा लगा, बहुत एक्साइटमेंट हुई। धीरे धीरे हम सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ जाने लगे कि कोई हमें और कोई क्यों बता रहे हैं हम कैसे हैं, हमें तो खुद पता होना चाहिए ना। मैंने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था कि अगर मैं अभी आप लोगों को बोलती रहूं यू आर इन चाइना, यू आर इन चाइना, तो कंफ्यूजन है ही नहीं ना, क्योंकि क्लैरिटी है। जहां लैक ऑफ क्लैरिटी है वहां पे डाउट होता है। तो यहाँ लैक ऑफ क्लैरिटी, आप खुद को ही नहीं जानते, सेल्फ लव ही नहीं है, यू डोंट नो अबाउट योरसेल्फ, सो अदर्स आर टेलिंग यू, है ना। और हमने ये भी सीखा, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, है ना। जहाँ पे मैं आपको बहुत सारी कहानियां भी सुनाई है इस एक हफ्ते, तो जहां मैंने वो गधे की और एक बूढ़े आदमी और उसके बेटे की आपको कहानी सुनाई कि कैसे वो धीरे धीरे अपने जर्नी पे जाते हैं, तो अलग अलग लोग कैसे कमेंट, लोग पीछा ही नहीं छोड़ते, पीपल विल ऑलवेज हैव देयर जजमेंट,
लेकिन आपको अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल किसी और को देना है या खुद के पास रखना है, दैट इज टोटली योर चॉइस, दैट्स अ चॉइस दैट यू मेक, राइट? नेक्स्ट, लेट्स गो फॉरवर्ड प्लीज। आपने हमें कॉल लिस्ट पे बनाने को कही थी, जिसमें आपने कहा था मेक अ लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड टू एक्सेप्ट अमंग्स आवरसेल्व्स, करेक्ट, and we had to write that, you know, I accept so and so, that what is our current reality. राइट। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि चांद में भी दाग होते हैं और मैं अपने ये स्कार्स को जब से एक्सेप्ट किया इतनी ब्यूटीफुल हो गई। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, आई डोंट रिमेम्बर दी लास्ट टाइम आई गॉट अ फेशियल डन एंड आई एम टॉकिंग इयर्स, और मैंने बताया कि जब मेरा साइकिल था डिप्रेशन का, जब मैं हफ्तों हफ्तों नहीं नहाती थी तो कैसे पस पड़ जाती थी और कितनी बदसूरत हो गई थी, लेकिन धीरे धीरे और महीनों तक अपने आप को शीशे में नहीं देख पाती, मतलब हिम्मत ही नहीं होती थी। इतनी खूबसूरत लड़की जो अपने अर्ली टीन्स में तब फूजी पिंक बाल रंगवा रही है, टैटू बना रही है, दैट काइंड ऑफ अ गर्ल, डेली नेल पेंट चेंज कर रही है, ऐसी हो गई कि प्यार में दिल टूटा तो शीशे में अपने आप को देखने की हिम्मत ही नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस ही चला गया। गाड़ी जो लड़की रोहतांग पास चला के ले जाती थी, उससे गाड़ी स्टार्ट नहीं होती थी, हाथ कांपते थे। तो धीरे धीरे हमने फिर अपने आप को खुद से एक्सेप्ट करना कि कोई बात नहीं। तो लोग टोकते थे, मैं कहती थी कि चेहरे पे दाग है तो क्या यही मेरा एक्सपीरियंस है, यही ब्यूटी है, सो हम अपने कलर हेयर कलर नहीं करा रहे हैं, यू नो दैट्स विजडम। तो इस तरीके से सबको बोला गया अपनी अपनी लिस्ट बनाओ कि अपनी किस एस्पेक्ट को, पर्सनालिटी को आप जो है एक्सेप्ट कर रहे हो, क्योंकि फिर वो एक्सेप्ट करते ही आपकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। आपकी पर्सनालिटी की वो चीज, ये नई चीज है, प्लीज नोट्स में लिख लो। वो वीकनेस क्यों है? क्योंकि वीकनेस आपने बना रखी है। अगर देखा जाए एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज न्यूट्रल, there's nothing right, there's nothing wrong, there's nothing positive, there's nothing negative, it's all subjective. What's good for you can be bad for me and vice versa. तो आपकी जो वीकनेस या लिमिटेशन है वो तो सेल्फ डिफाइंड है, उसको एक्सेप्ट कर लो, वो आपकी स्ट्रेंथ बन जाएगी। मेरा इमोशनैलिटी ओवर इमोशनैलिटी थी, हमेशा से वीकनेस थी, उसको स्ट्रेंथ बना लिया। पहले जमाने में कॉर्पोरेट आईक्यू देखते थे, इंटेलिजेंट क्वेश्चन जॉब देने के लिए, आजकल ईक्यू देखते हैं, इमोशनल क्वेश्चन, because you have to work in big teams. So emotionally, if you are a people person, if you can connect with people, so मैंने अपने over emotionality का जो over bubble हो जाता था उसको अपनी strength बना के, that's how I'm a healer today. That's how when you come and tell me, ma'am, you don't judge us, आप कैसे समझ जाते हो हमारी प्रॉब्लम एक मिनट में। So अपने weakness को आप strength बना सकते हो, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? Acceptance करना पड़ेगा। What's next, Ashima? मैम आपने डे 5 के लिए असाइनमेंट दिया था that we have to do something for ourselves that pampers us and makes us happy. And day 5's agenda was nurture your soul. Correct. So Anil ji, my vocal cords will get some rest. आप हमें बता सकते हैं लोगों ने क्या क्या किया था जब हमने कहा था कि कुछ भी करो to pamper yourself? Couple of points, what all people did. नेल पॉलिश लगाया एक ने, और किसी ने अपना फेशियल किया, एंड I heard some songs and all that, and what else? Somebody did cooking. Yeah, cooking. Yeah. We had about 9 people that day. Yes, so different people did different things. So हमने ये देखा, जो नेक्स्ट डे का हमारा टॉपिक था नर्चर द सोल, उसमें हमने ये देखा कि जैसे हमारे पेट में भूख है, हमको खाना चाहिए, एनर्जी की हमने बात करी कि रात की नींद हमको चाहिए, जो यू नो एनर्जाइज आवर बैटरी। हमको डिवाइन जो है यूनिवर्स सनलाइट दे रहा है, एयर ऑक्सीजन दे रहा है, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, सबसे हमको एनर्जी मिल रही है। इसी तरीके से जो इनटेक है एक्सक्यूज मी, जो हम खाना खा रहे हैं वो हमको एनर्जी दे रहा है। इसी तरीके से सोल की भी एक हंगर है ना, और वो सेल्फ लव से। तो उसमें जब लोगों ने बोला कि आज मैंने नेल पेंट लगाई और दिन भर मैं अपने हाथ को ही, आई केप्ट लुकिंग एट माय हैंड्स, दे वर लुकिंग सो प्रिटी। सो वहां पर हम लोगों को समझ में आया कि जब हमने अपने ऊपर कुछ काम किया तो हमारी सोल की जो प्यास है, भूख है, वो मिटी और हमको बहुत अच्छा लगा, राइट? लेकिन भारती, क्या अब आप बताएंगी कि नेक्स्ट लेवल इसका क्या था? जो सभी पार्टिसिपेंट ने किया वो फर्स्ट लेवल था, बेसिक लेवल, जहां पे वी ट्राई डेकोरेटिंग आवर फिजिकल बॉडी, ईदर वी ट्राई डेकोरेटिंग आवर फिजिकल बॉडी और we tried doing something which catered to 5 senses.
ठीक है, खाना बना रहे हैं तो मम्मा की रेसिपी है ना, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, म्यूजिक सुन रहे हैं, तो 5 सेंसेस का एंटरटेनमेंट इन्वॉल्व था वहां पे, करेक्ट। सो भारती नेक्स्ट लेवल पे हम क्या गए, शेयर करोगी हमारे साथ कि सोल को नर्चर करने के लिए इसके बियॉन्ड जो है वो क्या है? मैम जो जैसे कि आपने कहा था कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो अपनी बॉडी को नर्चर किया था, मीन्स वो तो हमने आउटर पार्ट को किया था, बट इसी तरीके से हम अगर अंदर उन्हें करेंगे तो उससे ज्यादा हमारे जो फेस पे हमें इन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब हम अंदर से खुश है, मेडिटेशन करेंगे तो इन सब चीज से परे हो जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे फेस पे ग्लो आएगा। तो ये चीज एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो इसका मैंने एक एग्जांपल ये दिया था कि हम गाड़ी चला रहे हैं और हम पेट्रोल डाल रहे हैं, फ्यूल मैम। गाड़ी बहुत बढ़िया चल रही है ना, और पेट्रोल खत्म हुआ, गाड़ी फिर खड़ी होगी, फिर पेट्रोल डाला, है ना। तो हमने फिजिकल बॉडी को, आपने बोला मैंने खूब वैक्सिंग करी मैम, और मैंने खूब फेस पैक लगाया, सम पार्टिसिपेंट्स सेड मैंने स्क्रबिंग की, मैंने ये किया वो किया, यू नो, सो वी, एंड दीस आर नाइस थिंग्स, okay, you enjoy doing all these things, you should take, I told you that our bodies are like a temple, so you must decorate them, you should take care of yourself, you should pamper yourself, it gives you confidence, right? However, I told you, how about this कि हम अपना पेट्रोल पंप खुद ही सेल्फ रिलायंट मोड पे चले जाएं, और सेल्फ रिलायंट के लिए फिर हमने आइडेंटिफाई किया बेस्ट क्या है। आशिमा, क्या क्या चीजें हमने करी? मैम वैसे तो स्पिरिचुअल ग्रोथ पे काम करने के लिए हमने डिसाइड किया था कि आप अपने अंदर जाके, चाहे आप रेकी सीख सकते हैं, आपने मोडालिटीज बताई थी, कुछ हीलिंग मोडालिटीज। आई एम ग्लैड यू आर टेकिंग नोट्स। अपने नोट्स में देखो, जब मैं अलग अलग इक्वेशंस और यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करती हूँ तो यहाँ पर मैंने कुछ और भी समझाया था। रिमेम्बर वी स्पोक अबाउट एक्सपायरी डेट। मैम हाँ जी, एक्सपायरी डेट ऑफ आवर लाइफ अगेन वी हैव टू डू इन आवर नेक्स्ट बर्थ। अगर हम इस टाइम पे अगर हम कुछ हैं डॉक्टर या कुछ, तो दूसरे बर्थ में जाने के लिए हमें अगेन रीस्टार्ट अपनी स्टडी करनी पड़ेगी, वो चीज आपने एक्सपायरी डेट। So the expiry, what is the expiry date for your bank balance, your car, bangla, your girlfriend, boyfriend, your academic qualification? What is the expiry date? हमारी Death is the word. Yes, yes. You're so fearful about it. Death, yes. And what is the expiry date of whatever transformation or spiritual growth you do? मैम उसका कोई एक्सपायरी नहीं होता, जो नेक्स्ट बर्थ होता है हम वहीं If you से leave it here, next शुरू birth, करते it starts हैं। from here. हाँ, और अच्छा, बिकॉज आप में से अनिल जी, आप भी मुझसे रेकी कर चुके हैं, तो मैं ये ऑरा लेयर जब 7 लेयर्स पढ़ाई थी तो याद है हम बात करते कि एथरिक लेयर में ये सब नॉलेज स्टोर होती है, राइट? ग्रेट। सो वी स्पोक अबाउट नर्चरिंग द सोल, एंड यहाँ पर हमने बात करी कि जितना हम अपने सोल को भरेंगे उतना बाहर निखार आएगा हमारे व्यक्तित्व में, ठीक है। सो ब्रांडेड क्लोथ्स पहन सकते हैं, बहुत अच्छे अच्छे परफ्यूम लगा सकते हैं, विच इज गुड, है ना। लेकिन जब तक अगर सोल नहीं है तो कौवे और कोयल वाली बात हो जाएगी, बाहर से ऑल डेक्ड अप, और जब देयर इज नो सब्सटेंस विद इन, राइट। सो जब अंदर से सब्सटेंस आएगा तो अपने आप से बाहर निखार आएगा, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है वो इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, मीडियोकर लुकिंग, एवरेज लुकिंग लोग, नो मेकअप, no branded clothes, but people want to just be with them and talk to them all the time. I don't wear any makeup, everybody wants to talk. That's the electromagnetic radiation that is coming from your sadhana, your meditations. So it is very, very important. What else did we do in nurturing the soul? We also discussed about the fact that we should never beg for something. हमें सामने से मतलब और अपने खुद को गैसलाइट नहीं करना है, जो मतलब अपने आप को वैलिडेशन हमेशा करना चाहिए। जैसे सामने से अगर कुछ नेगेटिव भी बोल जाए तो अगर हमें अपना सेल्फ वर्थ पता होगा, मतलब आपने एक वो बताया था कि हमें अपना सेल्फ वर्थ पता होगा तो सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस खुद में आएगा तो हमारा सेल्फ लव अपने लिए इंक्रीज होगा, एंड दैट इज ऑल रिलेटेड। एंड जितना ज्यादा हम अपनी सेल्फ वर्थ के लिए क्लियर होते जाएंगे उतने ही डाउट रिमूव होते जाएंगे और उतना ही सेल्फ एक्सेप्टेंस आएगा और उतना ही सेल्फ लव बढ़ेगा। लवली, थैंक्स फॉर शेयरिंग। यस, आई लव द वर्ड, कीवर्ड क्या है यहाँ पे? सेल्फ वर्थ। तुम अच्छे अच्छे नोट लो, किताब के लिए चाहिए ये सब कुछ, है ना। आई कीप टेलिंग यू। सो सेल्फ वर्थ इज द वर्ड, है ना। तो हम ये सब सर्कस क्यों कर रहे हैं? अपने सेल्फ वर्थ को बढ़ाने के लिए। कुछ पार्टिसिपेंट्स ने जो आज नहीं है
कुछ पार्टिसिपेंट्स ने बात करी फियर, फोबिया। अच्छा, उससे पहले एब्यूज की बात हुई, ठीक है, एब्यूज की बात हुई और पंचिंग बैक की बात हुई। तो भारती, क्विक बुलेट पॉइंट्स, है ना? तो एब्यूज का क्या लॉ है? नोट्स में मैंने क्या लिखा है था बेटा? भारती, एब्यूज की क्या कहानी है? मैम क्या अब्यूज, इक्वेशन है? जैसे मैम लॉ वो ऑफ ग्रेविटी है। मैम उसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी अगर होती है तो बार बार होने लग जाती है। जैसे वंस इन अ वीक होती थी तो डेली होने लग जाती है, वंस इन अ मंथ होती थी तो वीकली हो जाती है। एब्सोल्युटली, अगर आप नहीं yes, रोकोगे तो वो बढ़ती ही जाएगी। correct. So with the abuse, if we analyzed it, that the intensity and the frequency keeps on increasing if it is not kept under check. और अब्यूज में सिर्फ हमने फिजिकल अब्यूज की बात नहीं की थी, अलग अलग लेवल के अब्यूजेस भी हमने स्टडी किए थे, ठीक है? तो आपने फ्रीक्वेंसी का एग्जांपल दिया, इंटेंसिटी भी, ठीक है। फिर हमने ये भी बोला कि एकदम से क्विट नहीं करते। बहुत बार जैसे कि हम लोग ड्रैग करते हैं कि बच्चा है, शादी ना टूटे, यू नो, वी कीप ऑन टेकिंग इट, है ना? बट उस पूरे प्रोसेस में जो है हम अपने आप को खोते चले जाते हैं। तो व्हेन टू टेक अ कॉल, जैसे एक रिग्रेट भी ये निकल के आया कि काश पहले ही मैं कॉल ऑफ कर लेती अपनी शादी। मैं सोचती रही बेटी, या प्लीज गो ऑन। मैम जैसे कि आपने बताया था कि हमें किन किन चीजों को एक्सेप्टेंस करनी जरूरी है। हमें दूसरों से एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए, हमें अपने लिए एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि मुझे गुस्सा मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर हूँ, मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आता है। तो जैसे मुझे पता चल गया कि मैंने एक्सेप्ट किया कि मुझे गुस्सा आता है, तो मुझे उस गुस्से पे वर्क करना है। कि मुझे अगर यस, सामने वाला कुछ कह भी रहा है तो मुझे उसको एनालाइज करना है कि वो पागल है, कहता रहे, बट मुझे अपनी अपनी एनर्जी उस पे वेस्ट नहीं करनी। मुझे अपनी एनर्जी अपने सोल पे लगानी है ताकि मैं एक एब्सोल्युटली। निखार आए। वेक्टर पढ़ते थे हम। अनिल जी, यू आर आल्सो एन इंजीनियर जस्ट एज मी। वेक्टर याद है आपको अनिल जी? Vector, do you remember vector? No. With the magnitude it has direction, Yeah. correct? So I'm only talking about changing the direction, that's it, that's what I did. Intensity तो बहुत ही जरूरी है ना किसी भी फील्ड में सक्सेस के लिए, वरना मीडियोकर रह जाओगे ना। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब लोग क्यों हैं? बिकॉज इनकी इंटेंसिटी थी, उसके साथ राइट डायरेक्शन भी थी। चैनलाइजिंग ऑफ योर एनर्जी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? That's exactly what I did when I told you that somebody said कि समुद्र सी जैसी गहराई है तुम में, तो उसको जो है हमने रीडायरेक्शन, वेक्टर के साथ यही हो रहा है, दिशा बदल दी, ठीक है भारती? लेकिन भारती, अगर गुस्सा आ रहा है तो दूसरे को बीन बैग भी नहीं बनाना बेटा। मैंने ये भी बोला था जब आप हंसने लग गए थे कि आजकल बहुत केसेस आ रहे हैं जहां बीवियां भी पतियों को मार रही हैं, और उन बेचारों की इतनी दुर्गति हो रही है कि औरत तो बाहर जाके बोल सकती है दैट यू नो माय हस्बैंड इज अ वाइफ बीटर, हाँ, उसको सिंपैथी मिल जाती है। पति किसको क्या बोले कि बेडरूम में मेरी बीवी मुझको पीटती है, दोस्त भी हंसेंगे, है ना? सो दैट इज आल्सो हैपनिंग। अभी न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, इंडिया इज द थर्ड वन जिसमें बीवियां मार रही हैं, थर्ड इन द थर्ड लेवल। चलिए, दैट्स सो सैड। हाँ, तो बीन बैग भी नहीं बनना है, और जो है हमको जो है, लेकिन गिल्ट भी नहीं होना चाहिए। भारती, जैसे ये गिल्ट निकल के आ रहा था कि मैंने क्यों ड्रैग करी इतने साल शादी, है ना? तो वो उसका भी हमने पर्सपेक्टिव चेंज किया, राइट? यस मैम, आपने कहा था कि हर एक काम ना एक डेस्टिनी लिखा होता है कि हमें स्टार्टिंग में तोड़ना नहीं चाहिए, हमें अपने रिश्तों को ना थोड़ा टाइम देना चाहिए, स्पेस देना इवॉल्व चाहिए। करने के लिए, यस जी मैम, यस। तो एक चांस मैंने दे दिया बट उसके बाद फिर भी वो सॉल्व नहीं हुआ, तो इट मीन्स कि हाँ वो यही होगा, उसका सो मतलब हमने वहां पे एंड करके। पैटर्न स्टडी किया बच्चे, जी मैम, पैटर्न मूव वहां ऑन पे, हाँ होके। जी हाँ, मैम। बिकॉज शादी हो गई, सब कुछ हो गई, सो टीथिंग प्रॉब्लम्स, यू नो, सो यू गिव इट जी मैम। टाइम, space. Like I said, I told you that two individuals will also evolve, individual जी journey, मैम। and the relationship will also evolve. So you give it some time because stakes are high and there's an emotional bond. जी But मैम। then when to draw a line and how gracefully is also what we looked at. Okay, back to Ashima. Next point. मैम वैसे तो हम काफी इंटरमिक्स करके चल चुके हैं, बट मैं डे Which is the beauty of life, no? It's all intermingled. बट हम वैसे उस क्रोनोलॉजिकली हम लोग डे 6 पर हैं। तो आपने डे 5 पे हमें असाइनमेंट दिया था दैट वी हैड टू मेक अ लिस्ट ऑफ व्हाट वी वेयर एज अ नाइट क्लोथ एंड डू वी हैव एनी नाइट टाइम रिचुअल्स एंड लाइक हाँ बेसिकली दैट। एंड डे 6 का एजेंडा था इनरवेयर एंड नाइट वेयर, और उस दिन मैं 30 मिनट्स लेट आई थी। Okay, because you had something important. That's all right. That's all right. भारती, अभी कितने बजे सो रही हो तुम?
मैम मैं कल ना 10:40 पे सो गई थी। दैट्स अमेजिंग। प्रीपोन होती जा रही है ना हमारी जी टाइमलाइन। मैम, जी मैम, लास्ट 2 डेज पहले मैं 11:30 पे सोई थी। और हमारे जितने भी इंसोमेनिया वाले पार्टिसिपेंट्स हैं वो सारे आज भाग गए, जी है ना? मैम, वो जी मैम, उन्होंने जितने कहा था कि वो लेट सोते हैं और लेट उठते हैं। जितने लोगों ने उसमें कहा था कि अपनी 2 बजे सो रहे हैं मैम, 4 बजे सो रहे हैं, वो 4-5 सारे लोग आज भाग गए, जी मैम। इंसोमिया वाले। हाँ ठीक है, ठीक है। तो इसमें बुलेट पॉइंट्स, चलो भारती थोड़ा सा आशिमा के भी वोकल कॉर्ड्स को रेस्ट मिलेगा। डे 6 में बुलेट पॉइंट्स बताओ क्या क्या हमने किया। मैम उसमें ये था अपने कि ना जो नाइट वियर होते हैं ना, वो कहीं से जैसे हम लोग फटे होते हैं या कहीं कुछ चीज निकल जाती है तो हमें टाँके नहीं लगाने, क्योंकि से शनि देवता जी नाराज हो जाते हैं। और नाइट के अलग होते हैं और डे के अलग होते हैं। बट हमें उनको ना जो नाइट वाले होते हैं उन्हें नाइट में ही पहनना चाहिए, दिन में नहीं पहनना चाहिए। हाँ तो सिस्टमैटिकली मतलब यही बताया था आपने। और मतलब कि कलर्स अच्छे-अच्छे चूज़ करो ताकि हैप्पी फील करें उनको देखकर। हाँ, कलर थेरेपी की भी बात करी थी, जी, मंडे कलर को ये कलर थेरेपी। पहन लो। जी मैम, कलर थेरेपी के बारे में आपने बताया था। तो कितने की और शॉपिंग उसमें कर डाली आपने? आप मुझसे स्पेशली पूछ रही थी मैम कौन कौन से कलर के कपड़े। मैम अभी नहीं किया, मम्मी के घर जाऊँगी तब करूँगी। मैंने मम्मी को ठीक है। कहा है था कि मम्मी मैम ने बताया था राहु के बारे में और उनके बारे में, शनि जी के बारे में, तो ऐसे-ऐसे होता है तभी हम लोगों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं बेसिकली रात में घिसे हुए कपड़े वो कंफर्टेबली फील होते हैं, तो आप सो जाओ, बट ऐसा होना नहीं चाहिए। उससे हम ये तो देख लेते हैं कि कुछ पैसे बचा रहे हैं, बट उससे हमारा ही नुकसान हो रहा है। यस, आप अपनी अबंडेंस फ्लो को जो है रोक रहे हैं। जी शनि मैम। और राहु की बात करी बच्चे, आज एकता भी नहीं आई है एस्ट्रोलॉजी में। एकता ने ये पॉइंट बताया था, एक और प्लैनेट हमने वीनस, इसमें डिस्कस वीनस किया। मैम, वीनस। एब्सोल्युटली हाँ। जी वीनस मैम। प्लैनेट का क्या पॉइंट था? मैम वीनस उन्होंने बताया था कि थोड़ा कुछ खर्च अपने पे करो तो कुछ ज़्यादा आपके पास लौटता रहेगा। ये तो आरओआई हो गया। ठीक है, तो बेसिकली यही है कि जो शुक्र प्लैनेट है, वीनस प्लैनेट है, वो हमको लग्जरी देता है ना? तो अगर हम ऑपरेट करेंगे फ्रॉम द स्पेस ऑफ स्कैरसिटी, इम्पल्सिव शॉपिंग की बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो एंजाइटी होकर हम लोग खरीद लेते हैं सामान जो हमको नहीं चाहिए होता है, वाइसफुल शॉपिंग की बात कर रही हूँ। प्लीज, लाइक आई डू, अनदर प्रिंसिपल आज लिख लो, स्पेंड मनी एज यू स्पेंड टाइम। ओके, सो नाउ द पॉइंट इज दैट जो शुक्र है, वीनस है, हमको लग्जरी देता है। और मैं इसमें क्लैरिफाई कर देती हूँ, जितनी हम खुशबू वाली चीजें यूज करते हैं या लग्जरी से कनेक्ट करते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, परफ्यूम्स लगाते हैं, लोशन, क्रीम, तो जो है शुक्र ग्रह भी खुश होता है। पता है कहीं ना कहीं ये सीमन से रिलेटेड, प्रोजनी से भी रिलेटेड है। ठीक है, तो कोई फैमिली स्टार्ट करे, बहुत सी चीजें इंटरमिंगल्ड होती हैं, तो वो भी हमको देखना है। ठीक है, और इनरवेयर की भी हमने बात करी थी कि कैसे हम आउटसाइड जो है, हमने बहुत डिटेल में बात करी कि जैसे हम आउटसाइड अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और अंदर कुछ भी चलता है, दैट शुड नॉट हैपन, बिकॉज दैट इज योर ट्रू थिंग, दैट इज क्लोज टू योर हार्ट। सो उसमें भी जो है हमको कैसे डिफरेंट कलर्स और वट एवर, दैट गिव्स अस कॉन्फिडेंस, है ना? इसमें कोई और पॉइंट रह गया जो आप ऐड करना चाहते हो? आपने बस राहु के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बताया था कि जो हमारे नाइट वेयर होते हैं सुबह उठते ही नहा के हमें चेंज करना चाहिए, हाँ, रात नहीं के तो कपड़े राहु अलग, बहुत दिन के तेज कपड़े है। अलग। जी जी जी, एंड सब लोग राहु और शनि के बारे में एकदम एंटेना खड़ा हो जाता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर नेक्स्ट क्या था हमारा? आपने डे 7 के लिए हमें एक लिस्ट बनाने को बोला था, विच इज़ अ लिस्ट ऑफ कंपल्शन, जिसमें आपने क्लैरिफाई किया था कि कौन सी चीज़ें हम कंपल्सिवली करते हैं, विच इज़ अ बिहेवियर पैटर्न्स, हैबिट्स या एडिक्शन। करेक्ट। एंड हमारा डे 7 का एजेंडा था कंपल्शन शुड लाइक किस और किक। सो किक मीन्स लाइक आगे और किस मीन्स कि हम वही पैटर्न्स और साइकिल्स में रिवॉल्व करना चाह रहे हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो ओवर टू यू अनिल जी, उस दिन हमने क्या क्या टॉपिक्स करे थे? ये कल ही की तो बात है, हाँ, क्योंकि सभी लोग, एवरीबडी सीम्स टू बी किसिंग देयर कंपल्शंस, दैट इज व्हाट आई वाज डूइंग। yeah, the people explain their own compulsions, क्या करते हैं वो लोग। सब कोई कुछ जबरदस्ती कर लेते हैं किसी चीज के ऊपर लेके, क्या क्या लेकिन कंपल्शंस आई थी मोटी मोटी पार्टिसिपेंट्स की? उस दिन भी 10-11 लोग थे, क्या क्या कंपल्शंस आई थी मोटा मोटा, इफ यू रिमेम्बर? I have not noted down. अच्छा, आप मैम नोट्स नहीं ले रहे हैं? नहीं, ये नहीं नोट लिखा था। मैम ठीक है। मैं बताऊं,
अनिल जी, आप मुझको कितने साल से जानते हैं मोटा मोटा? 10-11 साल से। आपने देखी है मेरे में पास में बहुत सारी कंपल्शंस? हाँ, आर यू हैप्पी नाउ? या मच हैप्पी। थैंक यू। भारती बोलो बेटा। मैम जैसे किसने बोला था कि मुझे अपनी हाइट को लेके कंपल्सन है, कि मुझे Yeah, बोलते we हैं। had one participant who said जी that I have a complex कि मैं इटली हूँ. That's जी right. मैम। Yeah, मैम who was with us किसी from को, Lucknow और कानपुर. Yeah. जी मैम, और मैम किसने कहा था कि मेरा स्पाउस मतलब थोड़ा सा ऐसे है, डाउट करते हैं। अनिल जी शक्की ने है। शक्की। अच्छा ठीक है, ओके. या कि इससे बात मत करो, उससे बात मत जी करो. जी जी। Over और possessiveness. जी, जैसे मैंने कहा था कि मेरे पार्टनर को नहीं दिखता, उसके लिए कितना भी मैं अटेंशन सीकर मतलब बनने की कोशिश करूँ, वो नहीं होता, चाहे उन्हें हाँ, पता हो चाहे नहीं पता हो। तो मतलब हाँ. ऐसे ही जो लोगों का, और एक ने बोला था कि वो बहुत जल्दी किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं और टूट जाता है उनका ट्रस्ट। ये तो जो ये पैटर्न, बिहेवियरल जी पैटर्न्स आएंगे पैटर्न्स कंपल्शन. थे। मोटा जी मोटा मैम, कुछ लोगों का सब्सटेंस भी था या खाने पे भी था कि बहुत खाने पे ज्यादा भी एंग्जाइटी होती है तो बहुत टेंशन में ज्यादा खाना खाना खाते हैं। खाते हैं. तो है ना? आपने कहा सब्सटेंस की भी बात हमने की, जिसमें सिगरेट हो सकता है, अल्कोहल सिगरेट, हो सकती है, किसी शुगर। का ड्रग्स हो सकता है, जी मैम। सेक्स एडिक्शन भी हो सकता जी है ना? मैम। कि जी आपको जो है नॉट आउट ऑफ लव बट इट्स लाइक अच्छा आई एम वेरी एंशियस एंड आई नीड अ रिलीज. है ना? जी मैम। अच्छा, इसमें ना दो बहुत अच्छा, प्लीज कंटिन्यू बिकॉज दो इंपॉर्टेंट बहुत पॉइंट रह गए हैं. साइकिल की बात की थी मैंने एक साइकिल साइंटिफिकली पढ़ाया था. वो साइकिल नहीं याद है कैसे कंपल्शन आती है? मैंने ड्रॉ करके बताया था पेपर पे. मेरा नेट खत्म हो गया था उसके बाद में। आशिमा, यू मैंने यू बनाया है। यू वांट टू हेल्प मी बच्चे? हाँ जी। तो आपका जो साइकिल था, तो बेसिकली वेब तो उसका फर्स्ट पॉइंट था कि कोई एक एपिसोड जो हमारी कंपल्शन को ट्रिगर करता है, उसके बाद जब हमारी कंपल्शन ट्रिगर होती है तो कहीं ना कहीं हम गिल्ट या एंजाइटी या कोई भी नेगेटिव इमोशन महसूस करते हैं। और उस नेगेटिव इमोशन से हम बहुत एक ओवरवेलमिंग फीलिंग आता है जो हम हैंडल नहीं कर पाते। और उसके बाद उस नेगेटिव इमोशन, चाहे वो गिल्ट हो चाहे एंजाइटी, उसको ब्रेक करने के लिए या उसको मतलब थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए हम अपनी कंपल्शन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फूड हो चाहे किसी पे कोडिपेंडेंसी हो। मतलब मैं अपनी तरफ से ऐड कर रही हूँ जो मुझे समझ आया। तो विच इज बेसिकली द अनहेल्दी हैबिट दैट वी वांट टू ब्रेक। फिर उसके तो बाद क्या होता है साइकिल में नेक्स्ट? सो एपिसोड ट्रिगर हुआ एक्सटर्नल अफेयर से या जो भी एंजाइटी आई, गिल्ट आई, व्हाटएवर. देन उसके बाद क्या हुआ? अर्ज हुई हमें हमारे कंपल्शन की. मुझको सिगरेट पीनी है, सेल्स टारगेट मीट नहीं हो रहे, या मुझको कुछ भी करना है. ठीक है, तो वो अर्ज आया. फिर हमने क्या किया? हमने वो कंपल्शन करी. हमको इंस्टेंट रिलीज मिला जो टेम्पररी है उस समय के लिए. फिर नेक्स्ट क्या है बच्चे? उसके बाद जब हमें वो टेम्पररी अपीसमेंट तो हो जाता है, बट देन हमारा गिल्ट या जो नेगेटिव इमोशन हम इनिशियली फील कर रहे थे वो और बढ़ जाता है, विच सॉर्ट ऑफ लीड एब्सोल्युटली. टू अनदर ट्रिगर which makes us use the एब्सोल्युटली, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. और फिर साइकिल 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 साइकिल, है ना? वो वूंड जो है और गहरा होता चला जाता है. तो जैसे हमने डे 1, डे 2, डे 3 में बात करी कि ये जो गिल्ट है तोड़ना तो पड़ेगा ही कभी ना कभी. कब तोड़ना है? आज तोड़ना है, 20 साल बाद तोड़ना है, इज योर चॉइस एंड योर प्रॉब्लम एंड यू विल पे फॉर इट. है ना? और सबसे ज्यादा दम आप ही को लगाना पड़ेगा. कितना भी सपोर्ट सिस्टम हो, कितना भी अंडरस्टैंडिंग पार्टनर हो, साइकेट्रिस्ट हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, आप ही को करना पड़ेगा. ये भी हमने किया. तो उसी तरीके से यहाँ पर है कि हमको ये उसको ब्रेक करना पड़ेगा. यहाँ मैंने टिप क्या दिया? क्योंकि मोरल पुलिसिंग करें या हम किसी को साइकोलॉजी बता दे रहे सिगरेट नहीं पीनी बुरी है, कंपल्सिव इंपल्सिव शॉपिंग नहीं करनी बहुत बुरा है, तो दैट विल नॉट वर्क, राइट? तो हमने क्या समझाया कि इसको डिले द कंपल्शन, यस डिले द इंक्रीज कंपल्शन. वो जो टाइम विंडो है अर्ज जब फील हो रही है. एब्सोल्युटली. इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं अनिल जी? And spiral, you can take it up. That's a different point. Okay. That is growth. Yeah. वो आप ही एक्सप्लेन करना. चलो ठीक है. डिले करना है हमको अर्ज वाला जो है. हमें अपने आप को माइंड गेम खेलना है. हाँ मैं अभी सिगरेट पीऊंगी 5 मिनट के बाद. हाँ, और फिर क्या होगा? अर्ज जो है वो डाई करने लगेगी. It will go. धीरे धीरे रिड्यूस होगी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी. और कभी अगर स्लिप कर जाओगे तो खुद को जज नहीं करना है, अपने साथ बहुत जेंटल पेश आना है. इट्स ओके. मैं स्लिप कर गई. इट्स ओके. आई विल ट्राई टू वर्क मोर. इट्स अ जर्नी, राइट? देयर बी फेलियर्स, देयर बी सक्सेस. पॉइंट टेकन.
अनिल जी अब आप बताइए साइकिल और स्पाइरल वाला पॉइंट, आपको बहुत अच्छा लगा था ये पॉइंट उस दिन। Spiral means you take it things in a way that they go up, and you improve, keep on improving and improving as you do the things. अच्छा मैं दोबारा बताती हूँ, प्लीज टेक नोट्स, क्योंकि पहले टेस्ट होगा और वो जो टेस्ट क्लियर करेगा उसी को एडवांस में एडमिशन मिलेगा। सो मैंने ये बताया दैट एवरीथिंग इन यूनिवर्स इज इन साइकिल, राइट? Our planet Earth rotates or revolves, whatever, that's a cycle. Our body, human body, women body, menstruation, everything is a cycle, right? So similarly, our patterns, whatever patterns we have, I have my patterns, you have your patterns, right? All the patterns, that is also a cycle, right? So जब तक भंवर में जाते रहोगे, comfort है, comfort zone की हमने बात की, लेकिन growth नहीं है, ठीक है? साइकिल में कंफर्ट है बट ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ के लिए क्या करना है? क्योंकि साइकिल में देखो बस वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है ना, साइंस आता है मेरी हर चीज में, है ना? वर्टिकल कंपोनेंट नहीं है, तो ग्रोथ के लिए मैंने क्या बोला? सर्कल का ये पूंछ पकड़ो टेल और स्पाइरल बनाने लगो। जैसे ही सर्कल को स्पाइरल बना दिया, ग्रोथ होने लग गई। ये हमने उसमें टॉपिक डिस्कस किया था। अनिल जी, दो अलग अलग टॉपिक है, ओके? ऑल क्लियर नाउ? Or nothing clear, absolute nonsense? Yeah. Okay, all right. What is next, Ashima? मैम उसके बाद आपने हमें डे 7 पे आज के लिए असाइनमेंट दिया था, जो मैंने पहले बताया था, मैं दोबारा बताऊं? हाँ प्लीज बता दो। हाँ जी, आपने हमें कहा था कि हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन जनरल अपने रिलेशनशिप में हम गिवर हैं या टेकर हैं, एंड वी हैव टू मेक 2 सेपरेट कॉलम एंड आइडेंटिफाई कि हम गिव कैसे करते हैं, टेक कैसे करते हैं। एंड आज का एजेंडा है पैराडाइम शिफ्ट, द जर्नी फ्रॉम अ टेकर टू अ गिवर, द लास्ट डे ऑफ ग्रेट जो बहुत दुख सा हो रहा है ना ये बोलते हुए, आज लास्ट डे है, बड़ा मजा आ रहा था और छोटे छोटे बच्चों से भी बात करते थे अपने कॉल्स में। अच्छा ठीक है, तो असाइनमेंट हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि कल हमने गिवर टेकर पे भी काफी बात कर ली थी। लाइक यू सेड वी काइंड ऑफ इंटरमिंगल एवरीथिंग, बीच में रेकी हम डिस्कस करने लगते हैं, बीच में एस्ट्रोलॉजी ले आते हैं, फिर सेल्फ लव ले आते हैं, सब कुछ चलता है ना? तो मुझको गिवर टेकर के बारे में भारती कल क्या किया था बताओ, या असाइनमेंट से शुरू करते हैं? हु वांट्स टू गो फर्स्ट? आर यू गिवर और टेकर? अच्छा मैंने इसमें ये भी समझाया था, कोई भी इसमें हार्डकोर वो नहीं होता है कि आई एम अ गिवर और आई एम अ टेकर। यहाँ पे भी जो है इंटरमिंगलिंग होती है। फॉर सम थिंग्स यू विल आइडेंटिफाई दैट यू आर गिवर, सम पॉइंट्स यू विल सी दैट यू आर अ टेकर, इट्स अ कॉम्बिनेशन, राइट? वी कैन डू अ असेसमेंट ऑन दिस आल्सो। सो हु वांट्स टू गो फर्स्ट? मैम मैं तो ना गिवर ही हूँ। ओके दैट्स लवली। मैम असाइनमेंट में क्या लिखा है? आई वांट टू नो दैट। मैंने क्योंकि मैम आपने पता असाइनमेंट है, नहीं किया? हाँ जी नहीं बोलिए। मैम नहीं किया था मैंने कल, वो मेरे को नहीं आपकी पता चला था। डॉटर का है? आपकी डॉटर का है आज? डॉटर का अभी है आपकी नीचे आज? नीचे गई है मैम, अभी फ्रेंड्स के पास ओ, नीचे मैंने गई कहा है। हम उनको हेलो बोल दे, बिकॉज आज हमारा लास्ट डे है, तो उसको गुड़िया को ओके हम हेलो बाय बाय बोल दे, मैम, मैं और उसको बुलाती आपकी हूँ अभी। शिकायत भी लगा दे। जब बच्चे स्कूल में होमवर्क नहीं करते हैं तो पीटीए में पेरेंट्स को कंप्लेन की जाती है, तो जब नहीं पेरेंट्स होमवर्क नहीं कर रहे हैं और जब वो आपकी 8 साल की लड़की बोल रही है कि मम्मी ये कोर्स आप करते रहना, आप ठीक रहती हो, है ना? जी मैम। तो मैं मुझको एक्चुअली आपकी डॉटर से कंप्लेन करनी है कि बेटा मम्मा होमवर्क नहीं कर रही है। नहीं मैम, पता है वो पहले जैसे मैं ना ऐसे नॉर्मल रहती थी, मतलब ऐसे बन बांध लिया कुछ नहीं, और अब उसको लगता है कि मम्मा लिपस्टिक लगाओ, मम्मा सूट पहन लो, मम्मा लाइनर लगा लो, आप क्यूट लगते हो, स्वीट लगते हो। That's तो nice. वो इस वजह से उसने कल, जैसे मैंने देखा ना, मैं बैठी हुई थी तो आज मुझे कहती है कल तो सूट डाला था, आज टी शर्ट फिर डाल लिया, सूट डालना था। मैंने कहा भी डाल लेंगे। चलो गिवर टेकर में आपको लगता है तो आप गिवर है और आपने जी मैम। असाइनमेंट नहीं किया, तो जरा अपनी डॉटर को बुला दो, मुझको उससे शिकायत करनी है मम्मी की। अनिल जी, आशिमा जी, एनीवन हैज एनी शेयरिंग? इफ नॉट दैट्स ऑलराइट। मैम हम लोगों में दोनों कंपोनेंट्स होते हैं। कुछ रिलेशनशिप Absolutely. में जैसे हमारे पेरेंट्स या एल्डर्स के साथ रिलेशनशिप होते हैं, तो वहां पे हम टेकर होते हैं क्योंकि पेरेंट्स से तो मिलता है। बट मोस्टली जैसा मेरा चाइल्डहुड रहा है, आपको काफी पता है, और कुछ कुछ चीजें मैंने डिस्कस भी की हैं, तो मेरे वो इमोशनल गिविंग और एडवाइस गिविंग वाले रिलेशनशिप ज्यादा रहे हैं।
तो जो कभी ना कभी मतलब अब मुझे एज अ पॉइंट ऑफ कंटेंशन भी लगता है कि मैंने इतना क्यों दिया, पर हाँ ठीक है, उससे मुझे बट एक्सपीरियंस उसमें मिला हमारा तो पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है ना बेटा, तभी हाँ तो जी, मैच्योरिटी आई है। हाँ जी, मैं वही कह रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अगर हम कुछ दे भी रहे हैं तो हमें चाहे वो एक्सपीरियंस के तौर पे मिले, चाहे मैच्योरिटी के तौर पे मिले, तो कोई रिलेशनशिप सिंगुलरली गिविंग एंड सिंगुलरली टेकिंग मेरे ओपिनियन में नहीं है, क्योंकि चाहे Exactly, वो and that's why I'm not interrupting, but I have to bring you back to the point, sweetheart, and that's what I said. Your personality. Don't talk about one relationship in isolation. That हाँ with जी, Rahul, it was like this. With Suman, it was like this. हम्म, This is about your personality. हाँ जी, Yeah. So it will have different colors. किसी के साथ हमारा बहुत शॉर्ट लिव्ड रिलेशनशिप होता है, हम जो है बिल्कुल उसका ऑपोजिट ही हमारा निकल कर आता है एस्पेक्ट. सो दैट्स ओके. सो या ओवरऑल हाँ okay, जी, take तो मेरे जितने yes. भी रिलेशनशिप रहे हैं जहाँ पे अगर मैंने गिव भी किया है, तो इन रेट्रोस्पेक्टिव रियलाइज दैट आई हैव आल्सो गेन्ड अ लॉट, तो मोस्टली वो That's the बैलेंस point. ही मान रही हूँ मैं। That's the point. ऐसे ही थोड़ी पूरा सुप्रीम कोर्ट संभालना है ना? ठीक है. हम काफी देर हो गई सुप्रीम कोर्ट गए हुए, बट होपफुली सून। जाएंगे जाएंगे जाएंगे. हाँ, वहाँ का वास्तु भी चेंज करेंगे. बहुत खराब है सुप्रीम कोर्ट का वास्तु. अनिल जी, आपने कुछ शेयर करना है? असाइनमेंट कुछ किया है आपने? No, overall, if I see my life, till my parents was there, I was taker. But now, after that, when I took responsibilities of my children and all that, I'm a giver. Although my elder daughter keeps me giving also, she supports me in every way. वो तो डिफरेंट है ना. लेटेस्ट मोबाइल यूएस में एप्पल का पहले आता है. मेरे लिए भी भिजवाती है वो. तो वो तो अलग चीज है ना. ओके, जोक्स अबाउट प्रेजेंट में क्या है. और मैंने इस डिस्कशन को ना एक और प्लेटफॉर्म पे उस पे लाती हूँ. मैं समझ रही हूँ हम सब ये कह रहे हैं कि हम पेरेंट के साथ टेकर हैं, बट हमको सेल्फ लव और मैन वुमन रिलेशनशिप और मैन मैन और वुमन वुमन व्हाटएवर पार्टनर रिलेशनशिप की बात करनी है गाइस. तो वहां पे मैंने कल भी क्लियर किया था कि कोई भी रिलेशनशिप में जो दो पार्टनर्स हैं, या तो एक या तो दोनों टेकर होंगे. ठीक है, लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. दोनों टेकर होंगे तो क्या होगा? भारती, आर यू बैक? यस मैम. दोनों टेकर होंगे. हाय स्वीटहार्ट. Hi. सब लोग हेलो बोल दो यार इसको. कैसी हो तुम? Hi. Hi. हाउ आर यू बच्चे? I am fine. What about you? Good. And today is the last day of our workshop. From tomorrow, no class for Mama, and we'll miss saying hi to you, darling. Why? Why? Yeah, because the program was only for 8 days, Baba. You want us to do more classes? मम्मा अगर क्लासेस रहती है तो मम्मा ठीक रहती हैं. What do you mean by that, darling? अगर हाँ, अगर मम्मा क्लासेस लेती है तो मम्मा ठीक से रहती है, मम्मा तैयार रहती है. वेरी नाइस. आपको अच्छा लगता है मम्मा जब तैयार रहती हैं? यस मैम. वेरी गुड. आप रात को ब्रश करके सोते हो? यस मैम. रात को ब्रश करके सोते हो बेटा? सोने से पहले ब्रश करते हो? तो फिर आपको मैम. भी अपना ध्यान रखना है ना, वरना आपको भी फिर ये प्रोग्राम में हमारे साथ बैठना पड़ेगा. मैं मॉर्निंग में ब्रश करती हूँ, नाइट में रात को भी करना है, रात को भी करना है. और मम्मा को ना डेली होमवर्क मिलता है, मम्मा को होमवर्क में भी हेल्प करना है. ठीक है? ओके. हम दोबारा से कोर्स करेंगे. अपना ध्यान रखो. ठीक है? लव यू. ओके. हाँ जी, हाँ जी. भारती जी बताएं, जब रिलेशनशिप में दोनों टेकर्स होंगे तो क्या होगा? तो मैम वो दोनों का बॉन्डिंग अच्छा होगा, दोनों का लव. दोनों टेकर्स है भाई, दोनों टेकर्स है. क्या कर रही हो? बवाल मच Giver जाएगा. नहीं. दोनों टेकर्स है. अच्छा अच्छा मैम सॉरी. इट्स ओके. हाँ, एक्सट्रैक्ट. दोनों टेकर्स तो एक्सट्रैक्ट करेंगे ना एक दूसरे से. व्हाट इज इन इट फॉर मी? क्रिबिंग सेशन होगा ना. मैं दिन भर कमा के लाता हूँ यार तुम्हारे लिए, तुम घर में बैठ के टीवी देखती रहती हो एसी में, और वो कहेगी कि यार मैं तो काम कर करके थक गई, तुम्हारे बच्चे पाल पाल के, तुम्हारे माँ बाप को देखते देखते थक गई, तुम क्या कर रहे हो? दोनों टेकर्स होंगे तो एक्सट्रैक्शन आ गया ना. जी मैम, मैंने सोचा था दोनों गिवर है मैम. नहीं नहीं नहीं, दोनों टेकर है. तो वहां पे जो है, और तो धीरे मैम धीरे धीरे डिफरेंस हो Yes. जाएगा दोनों के बीच में, क्योंकि करेक्ट. वो एक दूसरे को ना इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाएंगे कि मैंने तेरे लिए ये किया और तुमने मेरे लिए ये किया और तुम करते क्या हो, मतलब दोनों की कमियां निकालने लग जाएंगे वो. या एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस रिलेशनशिप का फेट क्या होगा? दो फेट होंगे. या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ब्रेकअप, या फिर समाज को दिखाते हैं, दुनिया को दिखाते हैं, बट बाहर बाहर यू हैव योर ओन लाइफ. राइट? जी मैम. अच्छा, अगर एक सिनेरियो 2, 3 सिनेरियो थे. ठीक है? सिनेरियो 2,
एक गिवर है और एक टेकर है, वहां क्या होगा? तो मैम जो देने वाला होगा ना वो तो देते ही रहेगा, लेने वाला लेते रहता है, बट अल्टीमेटली फाइनली वो ब्लास्ट हो जाएगा देने वाला। वो ये कहेगा हाँ कि आप मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो, मैं ही सब कुछ करता हूँ। मतलब जो लेता है उसको तो ठीक है कि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उन्हें तो बैठे नहीं, हुए सब बट कुछ। एकता ने यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो टेकर है he will never stop ना, जी मैम, he will take you for granted, जी मैम, he will never stop, उसकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती ही चली बढ़ती जाएंगी, जाती है। जी है मैम, ना? उनकी चार एक्सपेक्टेशंस चार बढ़ती बजे हैं। उठ के फिर पराठे बनाते जाओ, वो फिर लगा ही रहेगा, दूसरे को जी मैम, एहसास भी नहीं हो रहा है ना? और दोनों गिवर्स होंगे तो क्या होगा? मैम उनकी बॉन्डिंग अच्छी होगी। बहुत अच्छी होगी। वहां पे कैसी उनकी बातें बॉन्डिंग होंगी? वहां वहां पे पे क्या होगा? दे बोथ आर आपने मेरे, हैप्पीली सिंगल, जी मैम, दे, आपने हाँ, मेरे एंड लिए देन ये किया तो मैं टुगेदर, भी आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है मैम, दोनों में या बॉन्डिंग अच्छी होगी, सो क्योंकि सम उनमें कभी एग्जांपल्स, वहां पे कैसी कॉन्वर्सेशंस होंगी, कुछ एग्जांपल्स जहाँ पे दो तुम गिवर्स होंगे। ये काम कर रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ ये हेल्प करा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, आप बैठो, मैं ये कर लूंगा। मतलब लाइक या मतलब पॉजिटिव बिहेवियर रहेंगे दोनों के। करेक्ट, दे विल ट्राई टू एड appreciate each वैल्यू। other's work. जी मैम, Yes, there'll be lot of passion. There'll be passion comes later. The understanding would be very strong. They would try to बहुत बहुत contribute और into each मैम other's life, मैम हेल्दी रिलेशनशिप रहेगा दोनों का। और दोनों की ग्रोथ होगी, जी रिलेशनशिप मैम, भी ग्रोथ इवॉल्व होगा, होगी। जी रिलेशनशिप मैम, की भी ग्रोथ होगी, और इंडिविजुअल पार्टनर्स की भी ग्रोथ होगी, और सारे ग्रोथ होगी। डायमेंशन में, करियर में, हेल्थ में, लुक्स में आप सुंदर लगने लग जाओगे, एक बैलेंसिंग आ जाएगी आपकी लाइफ में। जी अच्छा मैम, रिश्ता होगा ना, आप में व्यक्तित्व में हर एस्पेक्ट में निखार आएगा। ये हम लोग करते हैं कि ये अलग अलग है डायमेंशन, करियर अलग है, हेल्थ अलग है, मनी अलग है, ऐसा कुछ नहीं, इट्स ऑल द सेम। तो वो जो है आपको बैलेंसिंग ग्राउंडिंग जो है सारे लेवल्स पर आएगी। वहां पे ऐसे कॉन्वर्सेशन होगी, ओ आप एक नया प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लवली, आई सी यू वर्किंग हार्ड, यू नो, लेट मी आल्सो शेयर इनपुट्स, वहां पे इस तरीके से होगा, और दोनों इवॉल्व करेंगे और रिलेशनशिप भी इवॉल्व करेगा, एंड दे विल क्रिएट मीनिंगफुल थिंग्स, एंड दे विल प्रॉब्ली क्रिएट लेगेसी फॉर सोसाइटी। ठीक है? और हर गिवर ना एक टाइम पे बेटा टेकर होता है। आप सीधा 12वीं में नहीं पहुंचे, पहले आपने 5वीं भी करी है, ये भी समझ लो। ठीक है? तो जो है ना, सनराइज होता है पहले, फिर सनसेट होता है। ठीक है? तो सनराइज भी बुरा नहीं है और सनसेट भी अच्छा नहीं है। हम जज नहीं कर रहे हैं कि टेकर ऐसा, गिवर ऐसा है, हम सिर्फ स्टेजेस को पढ़ रहे हैं। वो स्टेजेस रिलेशनशिप की भी है, हमने जो फ्यूचर वर्कशॉप करनी है उसमें एक ये भी वर्कशॉप करनी है, लिस्ट हमारी रोज ऐड होती जा रही है कि स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप, कैसे कॉन्फ्लिक्ट आता है, फिर कैसे दोनों पार्टनर्स एक दूसरे को मिस करते हैं, वापस आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं, फिर बॉन्डिंग होती है ना, इस तरीके से। जी मैम। ग्रेट, ग्रेट। एनीथिंग एल्स यू वांट टू से ऑन दिस? अच्छा, गौरव हमारे साथ बीच में आए हैं। हाय गौरव। Gaurav, are you there? Can you unmute yourself? Can we talk to you for a couple of minutes? Yes, yes. Good evening, Pooja. Hi, so good to see you. Gaurav, I hope आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा, क्योंकि आज हमारा लास्ट डेट है और आप आज आए हैं। तो क्या आप 2-3 मिनट में अपने सेल्फ लव जर्नी, क्योंकि मुझको मालूम है आप सेल्फ लव पे काम कर रहे थे पहले से, तो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका सेल्फ लव जर्नी अभी तक कहाँ रहा है? बिकॉज आपको ऑलरेडी मैसेज आया था, आपको एडवांस प्रोग्राम में जाना है, मैं कॉल के लिए इससे बोल रही थी, बिकॉज आई वांट टू मिटिगेट द गैप्स एंड मेक श्योर दैट everybody goes together. So how has been your self-love journey so far? What have you done? What are the areas you've improved on, and what are the areas you still want to work on? Means सेल्फ लव जब स्टार्ट में था तो लोगों की जो परसेप्शन है, लोगों का नजरिया होता है, उस पर बहुत कुछ मेरा डिपेंड करता था। सेल्फ वर्थ भी और मेरा खुद का सेल्फ इमेज भी, सारी चीजें उस पर डिपेंड करती थी। बट ऑफ लेट क्या है, अब मैं किसी का कोई रिमार्क्स आ भी जाएंगे, कोई जजमेंट आ भी जाएगी, बट वो सिर्फ एक सेकंड के लिए मैं उसको फिल्टर करूंगा, मैं समझूंगा और छोड़ दूंगा। तो नाउ आई नो कि मैं क्या हूँ, मैं अपने आप को, सेल्फ अवेयरनेस बहुत अच्छी है। अब मैं अपने आप को जानता हूँ, वीकनेसेस जानता हूँ, और मुझे मेरी हैप्पीनेस कहाँ है, मेरा पीस ऑफ माइंड कहाँ है, मुझे क्या चाहिए लाइफ में स्टेबल रहने के लिए, हैप्पी रहने के लिए, और बाकी सारी चीजें मेरे लिए एकदम इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं उसको इग्नोर कर सकता हूँ। हाँ, इग्नोर करना आता Very है। nice. And what So, are the areas that you feel that you still need to work on?
एरियाज यस आई थिंक कुछ पैटर्न्स हैं अभी भी। आप पैटर्न्स हमें अभी से शेयर करना चाहेंगे, वो आपको भी हेल्प करेगा और हमें भी हेल्प करेगा, क्योंकि फिर हमको अकॉर्डिंगली एडवांस प्रोग्राम का एजेंडा बनाना है। तो हमारी कोशिश ये रहती है, बिकॉज ये प्राइवेट प्रोग्राम्स रहते हैं, प्राइवेट इन द सेंस आई ट्राई टू मेक देम लाइक लिमिटेड, हर रोज 8-9 लोग जैसे रहते हैं, तो उससे हमको एक इंसाइट मिलता है कि कहाँ पर हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमको कैसे काम करना है, और हम असाइनमेंट्स भी वैसे ही डिजाइन करते हैं। और बिकॉज आप और मैं इस बारे में ज्यादा काम साथ में नहीं कर पाए 1-to-1, बाकी सब पार्टिसिपेंट्स के साथ मैंने 1-to-1 बहुत काम किया है, एंड आई एम टॉकिंग ईयर्स, नॉट इवन Right. मंथ्स, इयर्स। सो इट्स लाइक अ Right. फैमिली। तो अगर एक सिचुएशन पे मुझसे पूछा जाए, जैसे एक माँ को पता होता है बच्चे के बारे में, तो मुझे अपने स्टूडेंट बच्चों के बारे में मालूम है कि वो एक सिचुएशन में क्या करेंगे, उनकी क्या जरूरत है। तो एक एजेंडा अगर एडवांस प्रोग्राम का बनाना है, मुझको पता है मेरा कौन सा बच्चा आएगा, मेरे किस बच्चे की क्या रिक्वायरमेंट है, और मुझे उसकी मैपिंग कहाँ लेके जानी है। तो आप अगर कंफर्टेबल है, शेयर करना चाहेंगे आपके एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट या वर्क इन टर्म्स ऑफ सेल्फ लव क्या है अभी? श्योर। एक तो मुझे लगता है मैं बहुत एक मिडिल क्लास कंजर्वेटिव फैमिली बैकग्राउंड से हूँ, जहाँ पे बहुत डिसिप्लिन में रहा हूँ और बहुत जरूरत से ज्यादा डिसिप्लिन में रहा हूँ, एक क्रिटिकल एनवायरनमेंट में रहा हूँ, जहाँ पे हमें जज किया जाता था और मतलब हमें रिमार्क्स दिए जाते थे हर बात पे। मींस कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मूला एकदम क्लियर था कि अगर आप पास हो रहे हो इतने नंबरों से तो आपको साइकिल मिलेगा वगैरह वगैरह। तो वो मेरा एक सेल्फ क्रिटिकल मोड अभी भी ऑन रहता है, तो मैं उसको उस पर वर्क करना चाहता हूँ कि आई वांट टू बी मोर जेंटल विद माई सेल्फ। एक तो ये एरिया है। सेकंड, पास्ट में कुछ रिलेशनशिप फेलियर रहे, एक तो होता है उससे सीखना। मे बी आई हैव ओवर लर्न फ्यू थिंग्स फ्रॉम दैट फेलियर ऑफ रिलेशनशिप। और अभी मैं खुल के नहीं खेल पाता। मींस आई वांट टू एंटर इनटू अ न्यू रिलेशनशिप, एक होता है ना खुल के नई दोस्ती करना, एकदम बिंदास, उससे फुल ट्रस्ट करना, उस तरह का कहीं पे कहीं गैप है, उस पे मैं काम ग्रेट, करना। Great, thanks for sharing, and I really wish कि हमारा जो day 2, day 3, day 4 का सेशन था, काश आप वो अटेंड करते, बिकॉज वहाँ पे सारी इनहिबिशन, फियर, एंजाइटी, फोबिया, सेल्फ एक्सेप्टेंस, यही सब था। बट ठीक है, कोई बात नहीं, अनफॉर्चुनेटली उसकी रिकॉर्डिंग भी नहीं है, रिकॉर्डिंग भी हमने day 6 के बाद से शुरू करी। सो इट्स ओके, देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट टाइम। बट जो मुझको मोटा मोटा नजर आ रहा है वो ये आ रहा है, कुछ और पार्टिसिपेंट्स की भी ये रिक्वायरमेंट है, जहाँ पे हम चाइल्डहुड इनर चाइल्ड हीलिंग की बात करते हैं। जैसे हम अपने साथ जो है अभी ओवर क्रिटिकल है, क्योंकि बचपन से वो चीज आई, तो ऐसा है, इसको हमको अपने आप को मेडिटेशन या किसी के थ्रू चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पे जाके ही वहां कॉर्ड कटिंग करनी पड़ेगी, तभी हमारे एडल्टहुड में वो जो पर्सनालिटी पैटर्न है वो ठीक होगा। थियोरेटिकली आप भी जानते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट, तो अगर मैं भी उसको आपको बताती रहूं कोई फायदा नहीं है। एक्सपीरियंशियल लेवल पे वो जो ट्रॉमा रिलीज होना है वो आपको बचपन में ले जाके इनर चाइल्ड हीलिंग वर्क है। दूसरा, आई अग्री, जो ये आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ओवर लर्न कर लिया है बहुत चीजें पास्ट एक्सपीरियंस से, है ना, तो वही सेल्फ वर्क की जरूरत है, औरों पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, थैंक यू फॉर शेयरिंग। ओके, वील वर्क ऑन दिस। ओके, सो आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट टाइम। मैं तो 5 मिनट पहले ही भाग जाती हूँ रोज। यहाँ से फ्यूचर स्टेप ये रहे कि मैं सब लोगों के लिए तो 21st को हमारा योगा वाला जो इंटरनेशनल योगा डे है, जिसमें हम मेडिटेशन भी करेंगे, ठीक है, करेंगे, और उसके बाद जिस मिल ही जाएंगे, यू आर कनेक्टेड टू मी 1-to-1 बेसिस, आगे के भी प्रोग्राम्स होंगे। और जो मैंने ये सोचा है, क्योंकि बहुत से लोगों ने बोला हम एक दिन तय कर लेंगे, सैटरडे या थर्सडे, and every week but we'll pick up different topics, like Saturday one different topic, Saturday two different topic. It could be on Reiki, it could be how to cleanse energies of your house, how to be more confident, how to quit a bad habit, on different aspects of life, जिसमें आप भी शेयर कर सकते हैं। मुझको बहुत मजा आया पढ़ा के, मुझको ऐसे लग रहा है काश 8 दिन और मिल जाते, बिकॉज एक गिवर को किक भी मिलता है, and that is why for this program I did not speak about money at all, कि हमने ये लिखा कि
किसी को कोई भी बाधा ना रहे, सोचना ही ना पड़े, और पे एज यू गो लिखा कि किसी को अगर मन करता है तो डाल देना अकाउंट में पैसे, नहीं करता तो लेट्स नॉट इवन टॉक अबाउट इट। हाँ, लेकिन एक जरूर करना एक काम जिससे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है, वो ये है कि 8 दिन में आप लोगों ने खूब नोट्स बनाए। आई वाज जोकिंग अराउंड कि मैं जो किताब लिख रही हूँ मुझको नोट्स दे देना उसके लिए आप लोग। तो बस ये चीज ध्यान रखना, जो कुछ सीखा है ना वो आगे जो है और भी किसी को सिखाना, जो भी आपको लगे, और ये जल्दी करना, इसको पोस्टपोन मत करना। कुछ लोगों का ये भी कंपल्शन करेंगे, पता नहीं है। मेरे साथ फ्रैंकली रहती है ना, एक ही दिन आप परफेक्ट नहीं हो जाते हो। जब भी मेरा रिलैप्स होता था तब क्या होता था, बाय डिवाइन ग्रेस मैं काम धाम छोड़ के अपने आप को कमरे में बंद कर लेती थी। डिप्रेशन का रिलैप्स या कुछ होता था तभी मैसेज आता था, मैम you have changed my life, I'm in the center, please come, I can't survive, I'll kill myself। मैं उस समय अपना दुख भूल के एकदम नहाए भी नहीं है, रो रहे हैं, आंखें सूजे, कपड़े बदल के जा रही हूँ, और मैं ये रियलाइज करती थी कि जो प्रॉब्लम से मैं गो थ्रू कर रही हूँ वही प्रॉब्लम का स्टूडेंट मेरे पास आया, और जब मैं उसको समझाती थी वो बोल बोल के चीजें सोर्स से कनेक्ट होके वो मेरी सेल्फ काउंसलिंग होती थी। तो तब खूब हमने पोस्टर्स चलाए हैं जिसका टैगलाइन होता था, आई गेट हील्ड व्हेन आई हील यू, ठीक है। तभी वो एक मास्टर्स करके एक इंजीनियर लड़की जो कॉर्पोरेट में थी, तभी वो हीलर ऐसे बन गई। आप लोगों ने ही बनाया, कोई ऐसा प्लान नहीं था, कुछ भी नहीं था। बहुत कोशिश की, बार बार ये छोड़ के एमएनसी में जाओ, बहुत पैसे मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, तो आप लोगों ने ये चीज करी, तो ये आपके लिए भी है ना। अगर आपको लगता है आपने इस वर्कशॉप में कुछ भी सीखा है तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मत छोड़ना, कोई भी नीडी आपके सामने है उसके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर करना, ठीक है। लेकिन कितना करना है उसको ये ना लगे ज्ञान है, वैल्यू हो तभी करना। That's all I have to say. Anybody wants to say anything before we wrap up, please share, and then we'll wrap up the session for today. It was very nice attending the sessions, and I'm thankful to you and the other participants. We'll meet again. मैम आपने मुझे अपने आप से मिलवाया। अनिल जी मेरे दिल से एक इच्छा है, जब ये थोड़ा लॉकडाउन खुलेगा और कंफर्टेबल होगा हम गुड़गांव में एक सेशन करवाएंगे, ठीक है। आप हमारी हेल्प करेंगे लॉजिस्टिक्स। नो प्रॉब्लम। बहुत टाइम हो गया हमको, हाँ, क्योंकि अभी तो सब ऑनलाइन ही चल रहा है, और पहले तो हम वो घिटौनी में कितनी वर्कशॉप कराते थे, ज़ोरबा द बुद्धा, फिर तो हमारा सेंटर ही चल रहा था, बट वील डू समथिंग फॉर गुड़गांव, ओके, ठीक है, ओके। समबडी एल्स वाज सेइंग समथिंग। मैम मतलब मैं ना बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में चली गई थी, बट मैं अब अपने आप को फील करती हूँ, और मतलब ये जो 7 डेज में हुआ है सीरियसली मिरेकल है। आपने बोला था कि चमत्कार इतनी जल्दी नहीं होता, टाइम लगता है, बट सीरियसली मेरे साथ हुआ है। जैसे आपने कहा बैसाखी आप हो मेरा, मैं डिपेंडेंट हूँ आप पर, बट जैसे आपने कहा डिपेंडेंट नहीं होना, बट आप एक गाइड और एक मेंटर आप हमेशा रहोगे, और मुझे सीरियसली आप आगे लेके जा रहे हो, तो मेरा ना एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्डअप हो रहा है। मैं जब फर्स्ट से आई थी तो मैं ऐसे थी, नहीं मैं बोलूंगी तो कहीं ऐसा ना हो मेरी इंसल्ट हो जाए। सेकंड जब आपने गिल्ट कहा तो उसमें मैंने बोला तो मुझे लगा कि ऐसा ना हो कि कॉमन हर कोई मजाक उड़ाए मेरा, बट आपने समझाया कि नहीं मजाक नहीं उड़ाना। और फिर थर्डली आपने बोला एक्सेप्ट योर बेबी। तो मतलब अपने आप को एक एक्सेप्टेंस जो मैंने दी ना, वो मेरे लिए सीरियसली कि एक पॉजिटिव वे लेकर आ रहा है, और मैं इसे ना आगे जरूर कंटिन्यू करूंगी। एंड थैंक्स टू यू, थैंक यू मैम। इमोशनल कर देती हो तो मुझको हमेशा, ठीक है। देखो बेटा, हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, जो हो गया उसको पीछे छोड़ो, ठीक है। डिवोर्स इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, हम सबके साथ हुआ है ना, तो वो चीज को हमको पकड़ के नहीं बैठना है। आपने जो किया, यू वर अ फाइटर। अभी हमको 3 चीजों पे बहुत काम करना है, खुद पे तो काम करना है ना। देखो 8 साल की बच्ची कह रही है कि मम्मी बहुत सही रह रही है 7 दिन का प्रोग्राम करके, मैम ये क्लासेस करो, तो कितना चेंज आ रहा है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, ठीक है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है। और जो मुझे हमेशा लेडीज आके बोलती है कभी लाइफ में जॉब ही नहीं करी, अब क्या हाँ मिलेगी, तो मैंने यही बताया 2045 में भी तुम्हारे पास चॉइस है यही डायलॉग बोलने की। अगर अभी कोई नौकरी नहीं करी तो 2045 में भी यही बोल रही होगी, है ना। अभी शुरू करो, धीरे 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 हर चीज को, पौधे को भी बढ़ने में टाइम लगता है। जी मैम, मैं ट्राई कर रही हूँ मैम। जी मैम, प्यार ही नहीं है तो वी डोंट वांट रिसोर्सेज फ्रॉम एनीबॉडी एल्स, राइट। तो खुद को खड़ा करो। और तीसरी चीज ये है, यू हैव अ चाइल्ड जो तुमको देख रही है, मम्मी लिपस्टिक लगा रही है, स्पेशली अ गर्ल चाइल्ड। और मैं इस वर्कशॉप में कितना कुछ पढ़ा चुकी हूँ, रेकी है ना, चाइल्ड हीलिंग, जो अभी वो 8 साल की है, जो अभी वो
ऑब्जर्व कर रही है और एब्जॉर्ब कर रही है, उसका फ्यूचर, फैमिली पैटर्न, एंसेस्टर हीलिंग जो बात हो रही है, उसकी शादी की सक्सेस और फेलियर, तुम अपनी सिचुएशन को कैसे हील कर रही हो उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है, तुम अपनी, जैसे तुम इतना आई एम सो थैंकफुल टू यू, तुम मुझको इतना कुछ बोलती हो, तो इसी तरीके से तुम अपनी डॉटर की रोल मॉडल हो अभी। ठीक है, सो आपको उसको दिखाना है कि हाउ टू बी स्ट्रांग और अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करना है, चाहे बेबी स्टेप हो, थोड़ा थोड़ा कुछ भी हो। किसी पे बैसाखियां नहीं बनानी है कि कभी वो एक्स हस्बैंड बैसाखी है, कभी मम्मी बैसाखी है, कभी पापा है। उससे आपका कॉन्फिडेंस, आपका सेक्रल चक्र जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, वहीं से विल आएगा, वहीं से आपका वजूद बनेगा। एक्स आके पाँव पे गिर जाए कि प्लीज वापस आ जाओ, अपनी लाइन को इतना लंबा कर दो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं रहना है आपको। मैम ठीक वही है, मैंने अब करना है, मैंने अपनी स्टडी आगे कर दी है, एमए पहले किया हुआ था बट मैं बिल्कुल लॉस्ट हो गई थी। अब मैं डबल एमए कर रही हूँ, एमए इन जर्नलिज्म, और अब आगे आगे अब शाबाश। मैंने मूव ही होना है। जीवन में हर चीज का टाइम होता है, अब उसको कमाने दो तुम्हें, है ना, अब जी वो मैम। कमाए तुम्हारा प्यार, है ना, यू शुड डिजर्व। जी मैम। तो अपने पे जी काम करो तो बहुत ही अच्छा है। तो एक लाइन में हम चले गए। ये जो प्रॉब्लम चल रही है ना 2025 तक चलने वाली है। मैं हमेशा बताती हूँ, कोई ना कोई वायरस कुछ ना कुछ लगा रहेगा, अपने पे काम करो, आगे ग्रो करो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल। ठीक है, थैंक एनीबडी यू एल्स मैम। वांट्स टू, कोई बात नहीं बेटा, आई लव यू सो मच। अच्छा ठीक है, मेरे में इतनी एनर्जी आ जाती है ना आप लोगों से बात करके, खाना भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती। एनीबडी एल्स वांट्स टू से एनीथिंग? मैम मुझे कहना है, मतलब थोड़ा सा एक छोटा सा बैक स्टोरी है। तो जब आपने फर्स्ट टाइम, जब ये सत्संग में आपने फ्लोट किया था आइडिया, तो मतलब मैं तभी से बड़ा इंट्रीग हो गई थी, क्योंकि ये जो मतलब सेल्फ लव का टॉपिक एंड लीडिंग टू अ कमिटेड मैन वुमन रिलेशनशिप, आपको पता ही है कि मतलब इट वाज सॉर्ट ऑफ लाइक मुझे हाँ करना तो जरूर है। फिर उसके बाद आपने जब वो लिंक भेजा ना फर्स्ट टाइम, तो माय कॉन्फर्मेशन वाज, क्योंकि मैं उस समय मेडिटेट करके हटी थी एंड आई वाज चांटिंग ओम नमः शिवाय। तो इट वाज लाइक कि अगर ये उस टाइम पे मैसेज आया है तो दैट मींस शिवा आई हैव तुम्हारे टू, पापा है, शिवा तुम्हारे पापा आई हैं हैव तो टू, मुझको बोल आई हैव टू। एंड दो। मतलब मेरे साथ हमेशा ये होता था कि जब भी कोई कोर्स होता था ना कोई बाधा हमेशा आती थी। मैंने फर्स्ट डे पे भी ये कहा था, पर इसके साथ हमेशा ये था कि इट वाज सो इंस्टेंटेनियस। मतलब मैं उसकी जैसे आप कहते हैं ना कि हर एक चीज की एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन होती है, तो मैं उसके साथ मतलब बिल्कुल ऐसे जुड़ गई कि हाँ मतलब दिस इज समथिंग आशिमा, ये तुम्हारे उस टाइम पे आ रहा है। एंड आई थिंक मैंने जब फर्स्ट डे पे लॉग इन भी किया था, इट वाज 555 द नंबर ऑफ चेंज आपने बताया था। तो नंबर और ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ जी। तो उसके बाद मतलब फर्स्ट डे से लेके मतलब जो एक इंसान की एक्सपेक्टेशन होती है ना, मतलब जो मैं इनिशियली सोच के आई थी कि हाँ कमिटेड मैन वुमेन रिलेशनशिप के बारे में या कुछ है, मतलब वो कहीं छूट ही गया, बिकॉज आई डिस्कवर्ड सो मच अबाउट द लव। हम हमेशा एज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट सोचते हैं, बट कोई सिर्फ सेल्फ लव और खुद की एक्सेप्टेंस के बारे में इतना बात नहीं करता। तो मतलब पूरा एक 360 डिग्री चेंज था वो, कि पर्सपेक्टिव ही बहुत अलग था। एंड देन आपने जो इक्वेशंस हमें बताई, आपने जिस तरीके से आप साइंस स्पीच में इंक्लूड करके बताते हो, एंड सबसे ज्यादा ये चीज थी कि जैसे मेरी बहुत इनहिबिशंस थी या ट्रॉमास थे, जो सामने बताने में हिचक आती है, तो आप खुद से पहले अपने बारे में बात करते हैं, लाइक यू टीच बाय एग्जाम्पल, कि अगर मैं खुद नहीं अपने बारे में डिस्कस करूंगी तो कोई सामने वाला कैसे बता सकता है। तो वो एक बड़ा सेटिस्फैक्शन देता है कि हाँ अगर मैम बोल सकते हैं, मतलब मेरे टीचर बोल सकते हैं, तो मैं भी बोल सकती हूँ। तो वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ आती है अंदर। एंड जो एक शुरू शुरू में इनहिबिशन थी, मतलब अब मुझे ऐसा लग रहा है लाइक जो हमारे डे 6 से वीडियोस बनी, कि हाँ अगर पहले की भी वीडियोस बनती तो और रिलीज आता, मतलब एंड इट कुड हेल्प अदर पीपल आल्सो। एंड डिफरेंट डिफरेंट हमने चीजें पढ़ी, कुछ कुछ चीजें मतलब आपने, क्योंकि मैं आपकी स्टूडेंट रही हूँ, तो आपने पहले बताई, उसमें आपने आगे इलेबोरेट किया। तो मतलब एंड सॉर्ट ऑफ मेरी लाइफ में जो एक चीज थी ना, कि मेरी लाइफ में एक रूटीन, एक स्थिरता की थोड़ी सी मुझे हमेशा प्रॉब्लम्स आई हैं। तो 8 दिन रेगुलरली आना मुझे उस चीज में बहुत हेल्प किया, कि एक सॉर्ट ऑफ रूटीन बनी। इवन मैंने अपनी लाइफ में भी बड़े चेंजेस नोटिस किए, कि जो चीजें शायद मैं अपने माँ के जाने के बाद नहीं कर रही थी, इन 8 दिनों में, चाहे बहुत छोटे छोटे लेवल्स पे, पर वो मैंने दोबारा की। एंड इट गेव मी अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो मतलब मेरा तो एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। एंड
मतलब ये नोट्स और ये नॉलेज तो मेरे साथ हमेशा रहेंगे रहेंगे, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल। अरे इट्स ओके, आई लव यू सो मच, यू नो दैट। और आप मुझे मदर का दर्जा देते हो। मैं आपको ना दो बातें बोलूंगी, ठीक है? और ये सभी के लिए है। जब भी मैं एक पार्टिसिपेंट को कुछ बोल रही हूँ, आई एम कनेक्टेड टू द सोर्स, जो सब में डायरेक्टली आता है। ये सबके लिए। पहले तो ना ग्रोथ के लिए या कुछ भी पढ़ने के लिए पैसे नहीं चाहिए, नियत चाहिए। ये बात समझ लो, ठीक है? और जैसे आपने बहुत सही कहा कि मैं खुद को चूहा बनाती हूँ हमेशा, चाहे कोई भी प्रोडक्ट देने से पहले या हर सेशन में ये पूछने से पहले कि बताओ असाइनमेंट किया, तुम किस चीज के गिल्टी हो, तुम्हारी क्या कंपल्शन है। मैं खुद बताती थी, अपना पेन डिस्कस करने के लिए नहीं, कैथार्सिस मेरा हो चुका है, रिलीज मेरा हो चुका है, बट टू ब्रेक द आइस खुद के, कि देखो अंगुली मार डाकू की हमने कहानी, स्टोरीज, खूब कहानियां मैंने सुनाई। अंगुली मार डाकू की मैंने तुमको कहानी सुनाई कि कैसे हर किसी को मार के एक उंगली काट के, इतना क्रूअल था वो, गले में पहनता था, और फिर उसे रामचरितमानस लिख डाली, है ना? जो हम खुद को जज करते रहते हैं। तो ये चीज समझ लो कि आगे बढ़ने के लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते। बहुत लोग बोलते रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मेरे पास क्या था, मैंने कैसे बताया, 10-10 रुपए के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ता था, है ना? और आज की डेट में भगवान की दया से चीजें बहुत अच्छी हैं, ठीक है? तो रिसोर्सेज नहीं चाहिए, वो सेकेंडरी है, नियत चाहिए। अगर नियत है तो रिसोर्सेज बनाए जा सकते हैं। रिसोर्स है और नियत नहीं है तो वो पैसे लोगों की ड्रग्स में जा रहे हैं और बहुत अजीब अजीब सी चीजों में जा रहे हैं, ठीक है? फिर मैं काउंसलिंग के लिए आते हैं तो मुझको पता है। तो पहले नियत अपने अंदर पैदा करो, जब नियत आएगी ना तो एबंडेंस जो है यूनिवर्स आपको खूब देगा, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझको ऐसा लगता है मेडिटेशन और बढ़ाने की जरूरत है, रास्ते खुलेंगे। जो बेगर मोड वाला एक पॉइंट तुमने स्टार्टिंग में बोला था, मेरी इक्वेशन जिसने नोट्स में नहीं लिखा लिख लो। अभी हम बेगर मोड में रहते हैं, नौकरियां छोटी, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, ठीक है? बहुत से हीलर्स भी कॉल करते रहते हैं, ये सेशन ले लो, ये सेशन ले लो। मेरे कितने बार आप लोगों को कॉल आते हैं, मैसेज भी अगर चला जाए तो कई बार फेसबुक पे भी नहीं जाता, आप लोग खुद ही आ जाते हो, है ना? तो हम बेगर मोड में रहते हैं क्योंकि हमारी वाइब्रेशन जीरो है ना? तो हम भागते रहते हैं, इंटरव्यू दिया है, नौकरी नहीं मिल रही, प्रमोशन नहीं हो रही, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। इससे अच्छा एक जगह पे बैठो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ और मेडिटेशन से अपनी स्पिरिचुअली वाइब्रेशंस को बढ़ाओ। राइट अपॉर्चुनिटी, खुद फोन बजेगा, हेलो आप सेशन दे सकते हैं, कितने पैसे, नो प्रॉब्लम, बैंक डिटेल्स, 1 मिनट मनी कम्स इन। सो बेगर मोड में रहना है या अपने वाइब्रेशन को इतना ज्यादा बढ़िया कर दो कि जो आपके अंदर मन में आए वो आ जाए। मेरे पास 10 रुपए नहीं होते थे, मैंने लाखों लाखों के कोर्सेस कर डाले। ये सब डिवाइन हेल्प है, टीचर्स की भी हेल्प है, जैसे जैसे आए बेटा देते जाना। सारी कहानियां मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। सो नथिंग शुड बी स्टॉपिंग दिस थिंग फॉर यू। और अपने ऊपर काम करना, अपने ऊपर इन्वेस्ट करना इन टर्म्स ऑफ टाइम एंड मनी इज सेकेंडरी, इज वेरी इंपॉर्टेंट। वही बात है, एक्सपायरी डेट क्या है, अगली लाइफ में इसके आगे जाना है, कार्मिक कैलकुलेशन करना बहुत जरूरी है। जो गिवर है कभी ये ना सोचे कि यार मैं तो दिए जा रहा हूँ, दिया जा रहा हूँ। मैंने हमेशा बोला कि जो भी गिवर है, जो भी वो दे रहा है, कार्मिक कैलकुलेशंस ऐसी हो रही हैं कि वो जो है कैलकुलेशन के बाद आप जितना दे रहे हैं किसी को, उससे ज्यादा आपको रिसीव होगा, ठीक है? ग्रेट, आई थिंक दिस इज इट फॉर टुडे। और आज तो हमने 15 मिनट एक्सटेंड भी कर दिया। चलिए, आज हमारा लास्ट डे था। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू और जल्दी मिलेंगे। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, थैंक यू नमस्ते। मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू, नमस्ते।